यस गाइज, डन। यस। अभी ये लेक्चर दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, जो ऑनलाइन देख रहे। पार्ट वन, इसके पहले का जो था लेक्चर नंबर 44 पार्ट, उसमें आप लोग ये प्रॉब्लम नंबर 10th सॉल्व कर रहे थे और आप अल्टीमेटली टैली कर रहे थे सिर्फ। अब ये पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है, बीच में ब्रेक हो गया था लेक्चर। मेरे को आप क्या क्या है, जीपी कितना आया? 14, 14, 14810। एंड व्हाट अबाउट एनपी? 44320 आया क्या? कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल कितना आया? ओपनिंग ओपनिंग 26,770। नेट प्रॉफिट कितना? 4। एंड क्लोजिंग कैपिटल 36। क्लोजिंग बैलेंस शीट 36,410। टैली फिगर 49 आया। जम रहा है? गाइज, प्रॉब्लम नंबर 16th होमवर्क। 16th। 16th में मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है, कैश बुक प्रॉब्लम में रेडीमेड दिया है। देर इज नो नीड, देर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश बुक, रेडीमेड दिया हुआ है प्रॉब्लम में। बहुत सिंपल सम है, एकदम बेसिक सम है, कर लोगे। 16th होमवर्क। नाउ 13th। आई थिंक 5th, 13, 14, ये तीन बाकी है। 13th। From the following information obtained from Mr. Jagdish, a trader who does not keep accounts, prepare a trading and P&L account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date. Withdrawals from passbook, rent, rates, taxes, insurance, furniture, advertisement expenses, postage and telephone, drawings paid for purchases, salaries, wages. Balance at bank on 31st March was 3,000. Stock on 1/4/2020 was 24,000 and stock on 31st March 2021 was 4,000 less than that of opening stock. Out of the stock on 1/4/2020, spoiled stock was sold for 2,000, which amount was not deposited into bank. Payments for purchases include 4,000 for last year purchases. Current year's list of unpaid invoices not ticked off in purchase register amounts to 5,000. Purchase amount of 1,000 of previous year still remains unpaid. Collection for sales were 1 lakh, which includes 12,000 in respect of previous year's sale. Balance of unticked bills of last year's sale still due 8,000 on 31st March 2021. Unticked bills of current year total 20,000. Salaries 500 and wages 500 were outstanding. The online students काय म्हणतात बघ. पण मग ग्रुपवर मेसेज तरी टाकते, मला फोन करताय तिथे. Furniture on 1/4/2020 amounts to 6,000 and machinery on the same date amounts to 50,000. जाऊ दे, अपलोड कर नंतर, आता परत त्याच्यात वेळ जाईल, ऑलरेडी वेळ गेलाय. परत सगळं समजावत बसावं लागेल मला ते प्रॉब्लेम. Prepaid insurance amounted to rupees 400. Depreciation shall be provided at 10% on furniture and 25% on machinery. He maintains purchases and sales register and items are ticked off on collection or payment. All collections are deposited and all payments are by check. Rupees 1,000 petty expenses were paid out of his drawings. All purchases and sales were on credit. बोल तो सिर्फ क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स ही है. एक काम करते बेटा, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं डिक्टेट करता हूँ.
सिस्टमेटिकली लिखो जैसे अपन पीछे ट्राई किए थे। कौन से टॉपिक में? फाइनल अकाउंट्स में, हाँ। तो तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखो, आगे मत जाओ, घाई भी मत करो कोई। प्रॉब्लम नंबर 13, पेज नंबर 178। प्रॉब्लम नंबर 13, पेज नंबर 178। In the books of Mr. Jagdish, in the books of Mr. Jagdish, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021, full page, full page. Balance sheet, balance sheet as at 31st March 2021, half page, half page. Working notes, working notes. Balance sheet as on 1/4/2020. Balance sheet as on 1/4/2020. 8 lines. 8 lines. बनाया? Then rent, rates, taxes and insurance account 5 lines. Rent, rates, taxes and insurance account 5 lines. हेडिंग है वो, रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अकाउंट 5 लाइन्स. फर्नीचर अकाउंट 6-7 lines. Furniture account 6-7 lines. Debtors account, debtors account 6 lines. Debtors account 6 lines. Creditors account 6 lines. कैश बुक सिंगल कॉलम है, कैश बुक सिंगल कॉलम, हाफ पेज. कैश बुक सिंगल कॉलम, हाफ पेज. And finally, capital account 5 lines. Capital account 5 lines. Draw the format.
मला विचार, मी सांगतो काय. वैसे बेसिक ही प्रॉब्लम है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ वर्डिंग जो है ना वो कंफ्यूजिंग है। करूँ स्टार्ट? गाइस डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो धीरे धीरे बता रहा हूँ, अच्छे से समझ के लिखो, सुन के लिखो। From the following information obtained from Mr. Jagdish, a trader who does not keep accounts, prepare a trading and P&L account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date. विड्रॉवल फ्रॉम पासबुक, विड्रॉवल फ्रॉम पासबुक बोलते हैं सारे बैंक के पेमेंट्स है। वैसे भी जितने भी ट्रांजेक्शन दिए ना इस प्रॉब्लम में वो सारे के सारे बैंक के है। गो टू कैश बुक, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, बाय रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। कैश बुक, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, by rent, rates, taxes and insurance, 12,000 rupees। आपके पास अकाउंट है, देखो, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस। डेबिट साइड सेकंड लाइन, मैं जब तक बोलता नहीं लिखना नहीं। डेबिट साइड सेकंड लाइन, टू बैंक अकाउंट 12,000, टू बैंक अकाउंट 12,000। प्रॉब्लम में चेक करो अगला पेमेंट का है। फर्नीचर परचेस हुआ है, एक मिनट, एंट्री क्या पास करते हैं आप? फर्नीचर टू बैंक, कैश नहीं रहे, सारे बैंक के पेमेंट सही है, विड्रॉल फ्रॉम पासबुक है। फर्नीचर टू बैंक, गो टू कैश बुक, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर 2000। सेकेंड इफेक्ट, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 2000। सेकेंड लाइन है डेबिट साइड, गो टू कैश बुक, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय एडवर्टीजमेंट 2000। सेकेंड इफेक्ट, कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसमें, तो हमने अकाउंट नहीं बनाया, तो डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को जगह छोड़ो, एक 7-8 लाइन, 6-7 लाइन, तो भी 7-8 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो टू एडवर्टीजमेंट 2000। टू, गो टू कैश बुक, बाय पोस्टेज एंड टेलीफोन, बाय पोस्टेज एंड टेलीफोन 1000। कोई एडजस्टमेंट नहीं इसमें भी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड टू पोस्टेज एंड टेलीफोन 1000। कैश बुक बाय ड्राइंग्स, कैश बुक बाय ड्राइंग्स,
10,000. Capital account debit side second line, two drawings, 10,000. Two drawings, 10,000. Then paid for purchases. Don't misunderstand. Clearly लिखा है कि purchases and sales are only on credit basis. तो paid for purchases बोल तो payment to creditors, entry. Creditors to bank. Cash book by creditors. Cash book by creditors. 50,000. Creditors account debit side second line, to bank. To bank 50,000. एक मिनट, सैलरीज वेजेस पे हुए है, एक्चुअल में इन दोनों में भी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, बट सिर्फ आउटस्टैंडिंग का एक सिंगल एडजस्टमेंट है क्लोजिंग का बोल के मैंने अकाउंट नहीं बनाया, डायरेक्टली ट्रेडिंग एंड पी&एल में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट। एक काम करो आप, पहले आप कैश बुक में आओ, बाय सैलरीज 8,000, बाय सैलरीज 8,000, बाय वेजेस 8,000। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखो। ट्रेडिंग अकाउंट में आओ, डेबिट साइड थर्ड लाइन पे लिखो, डेबिट साइड थर्ड लाइन पे, टू वेजेस, इनर कॉलम 8,000, inner column 8,000, one line blank after that. P&L account में two salaries, inner column 8,000, again one line blank for outstanding adjustment. Now balance at bank on 31st March 2021 was 3,000, ये closing balance है 3,000 रुपए। कैश बुक में आओ, लास्ट लाइन बिफोर टोटल, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल, बाय बैलेंस carried down 3,000. Go to balance sheet, closing balance sheet, closing balance sheet, bank balance 3,000. सब लोग मेरे पास ध्यान दो। Stock on 1/4/2020, that is opening stock, was 24,000, and stock on 31st March 2021 was 4,000 less than that of opening stock. जबरदस्ती घुमा फिरा के दिया है। ओपनिंग 24,000, क्लोजिंग 20,000। गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट, स्टॉक इन ट्रेड 24,000, opening balance sheet stock in trade 24,000, closing balance sheet stock in trade 20,000. Second effect, trading account debit side first line to opening stock 24,000, by closing stock 20,000. उसी एडजस्टमेंट में लिखा है, आउट ऑफ द स्टॉक ऑन 1/4/2020 स्पॉइल्ड स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 2,000 विच अमाउंट वाज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कुछ डैमेज गुड्स थे जो हमने 2,000 में बेचे। अब एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड लाइन, by sale of spoiled goods, by sale of spoiled goods 2,000। अब ये 2,000 रुपए जो मिले डैमेज गुड्स बेच के, बेसिकली भंगार बोल के बेचा,
तो ये जो 2,000 रुपये मिले ये बैंक में डिपॉजिट नहीं किए बोल रहे हैं, बाकी के सारे ट्रांजैक्शन बैंक में है, बोल तो ये 2,000 का कैश बैलेंस रहना चाहिए। वापस बोलता हूँ, ये एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश आया है और वो कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, बाकी के सारे ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम में जो दिए वो सब बैंक के हैं। बोल तो कैश में सिर्फ इतना छुआ और ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उतना कैश बैलेंस बचना चाहिए तुम्हारे पास। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड 2,000। समझा क्या रे? डी एडजस्टमेंट, बिल्कुल भी लिखने की कोई गड़बड़ नहीं है अपने को। आप पहले आराम से पढ़ो, आप खुद समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगा, फिर अपन लिखेंगे। पेमेंट्स फॉर परचेसेस इंक्लूड 4,000 फॉर लास्ट ईयर्स परचेस, current year's list of unpaid invoices not ticked off in purchase register amounts to 5,000, purchase amount of 1,000 of previous year still remains unpaid। अब ये पूरे एडजस्टमेंट को एक साथ समझना पड़ेगा कि है क्या एग्जैक्टली है। पेमेंट फॉर परचेसेस बोल तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुआ है उसमें से 4,000 रुपये पिछले साल के परचेसेस के लिए, बराबर ना? तो पिछले साल के परचेसेस के अगेंस्ट में वो तो क्रेडिटर्स ओपनिंग में रहने चाहिए ना, प्लस एंड में क्या लिखा है, परचेस अमाउंट ऑफ 1,000 ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल रिमेन्स, पिछले साल के 1,000 रुपए अभी भी अनपेड है। पे कितने हुए? पिछले साल के परचेसेस कितने पे हुए इस साल? 4,000, अभी भी कितने बाकी है? 1,000। बोल तो क्या रे? 4,000 इस साल पिछले साल के लिए पे किए एंड 1,000 अभी भी पे करना बाकी है, तो 3,000 कैसे आएगा? टोटल 5,000 के ओपनिंग क्रेडिटर्स आएंगे ना, तो 3,000 बोला तू। 3,000 पे नहीं हुए, 4,000 पे हुए। पिछले साल के क्रेडिटर्स जो इस साल पे हुए वो कितने हैं? 4,000 है। अरे क्लियरली लिखा है ना, पिछले साल के क्रेडिटर्स जो इस साल पे हुए वो 4,000 के हैं, अभी भी जो अनपेड है वो कितने हैं? 1,000 है। बोल तो टोटल ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हो गए? 5,000 हो गए। अब ये डायरेक्टली देने के बजाय ओपनिंग क्रेडिटर्स 5,000 है, घुमा फिरा के दिया है। गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड सेकेंड लाइन, क्रेडिटर्स 5,000। समझा क्या? क्रेडिटर्स 5,000, क्रेडिटर्स के अकाउंट में आओ, क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, झेपते का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। फिर से उसी एडजस्टमेंट में आओ, इस साल के अनपेड कितने? 5,000 है इस साल के। सेकेंड सेंटेंस हुआ एडजस्टमेंट का, इस साल के अनपेड 5,000 है। बोल तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स में इस साल के 5,000 है, बट मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,000 नहीं आएंगे, 6,000 आएंगे। क्यों 6,000? पिछले साल का 1,000 भी तो बाकी है, तो इस साल के अनपेड 5,000 प्लस लास्ट ईयर का अभी भी बाकी है वो 1,000, तो ऐसे क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने रहेंगे? 6,000। झेपते का डेबिट साइड ऑफ creditors account, last line before total, to balance carried down, to balance carried down कितना? 6,000। second effect, balance sheet liability side, balance sheet liability side, creditors 6,000। आया? ई एडजस्टमेंट देखो, कलेक्शन फॉर सेल्स वर 1 लाख, पहले तो एंट्री पास करो कलेक्शन फॉर सेल्स की। बैंक टू डेटर्स, कैशेस तो है ही नहीं ना, क्रेडिट सेल्स ही है। बैंक टू डेटर्स, कैश बुक डेबिट साइड टू डेटर्स, फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखो हाँ ओपनिंग बैलेंस के लिए। कैश बुक डेबिट साइड टू डेटर्स 1 लाख। सेकेंड इफेक्ट, डेटर्स
by bank account 1 lakh। हो गया सबका लिख के। अब फिर से आओ ई एडजस्टमेंट में। कलेक्शन फॉर सेल्स वर 1 lakh विच इंक्लूड 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर सेल। बोल तो पिछले साल के कितने डेटर्स इस साल कलेक्ट हुए। बैलेंस ऑफ अनटिक्ड बिल्स ऑफ लास्ट ईयर सेल स्टिल ड्यू इज 8,000। कलेक्ट कितने हुए पिछले साल के इस साल 12,000। अभी भी कितने बाकी है बोल तो टोटल ओपनिंग डेटर्स कितने 20,000। गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस शीट सन्ड्री डेटर्स 20,000। डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। लिखा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अगेन रीड ई एडजस्टमेंट और अब मैं बिना समझाए आप मेरे को बताओगे क्लोजिंग डेटर्स कितने आएंगे। क्लोजिंग डेटर्स कितने आएंगे। इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं। नहीं 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 इस साल के 20,000 है ना। और पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो 8, तो 28,000 क्लोजिंग डेटर्स आएंगे। गो टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। go to closing balance sheet sundry debtors कितना 28,000 हो गया। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस आर आउटस्टैंडिंग 500 जाओ ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट में दोनों में 500 ऐड करो आउटस्टैंडिंग। आउटर कॉलम कितना आएगा 8,500 8,500। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। Furniture on 1/4/2020 amounts to 6,000 and machinery on same date amounts to 50,000. Go to opening balance sheet. Opening balance sheet. Asset side furniture 6,000. Machinery 50,000. लिखा। अब फर्नीचर अकाउंट बनाया हुआ है आपने। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। Then go to closing balance sheet. Machinery inner column 50,000
मशीनरी में एडजस्टमेंट है नहीं कुछ, तो मैंने अकाउंट नहीं बनाया उसका, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मशीनरी इनर कॉलम 50,000, वन लाइन ब्लैंक। समझा क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड अमाउंटेड टू 400 रुपीज बोला है, बोलो ना एंट्री, साल के एंड में प्रीपेड की एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, अकाउंट बनाया आपने, वो रेंट रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस, क्रेडिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। फोर हंड्रेड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 400। Depreciation shall be provided at 10% on furniture. I want all of you to go to furniture account. ओपनिंग कितना है? तो ओपनिंग पे तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। अच्छा, जो एडिशन हुआ है ना 2000 का, उसका डेट दिया है, कब हुआ है वो? 1 अप्रैल 2020 बोल, तो साल की बिगिनिंग में हुआ ना उस पे भी, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन उसके ऊपर भी आएगा। तो ओपनिंग का 6000 प्लस एडिशन 2000, टोटल 8000 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। क्रेडिट साइड ऑफ फर्नीचर अकाउंट बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन हाउ मच? 800, करेक्ट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ, आपने मशीनरी इनर कॉलम में लिखा हुआ है 50,000, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, कितना? 12,500। आउटर कॉलम 37,500। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन के फिगर्स पी एंड एल में, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 800, मोटर कार मशीनरी 12,500 लिखा। He maintains purchases and sales register and items are ticked off on collection or payment. All collections are deposited and all payments are by check. Rupees 1,000 petty expenses were paid out of his drawings. This is interesting adjustment. पेटी एक्सपेंसेस हुए 1,000 रुपए के, जो उसने उसके ड्राइंग्स में से किए। अब तुमने ड्राइंग्स को क्या ट्रीटमेंट दी? कैपिटल से कम किया ना तुमने, ड्राइंग्स क्या किए तुमने? कैपिटल से कम किए। अब वो जो ड्राइंग पर्सनल थे, उसमें से 1,000 रुपए तो बिजनेस का खर्चा हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस, तो फिर अब वो रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड लाइन बाय पेटी एक्सपेंसेस, बाय पेटी एक्सपेंसेस 1,000। go to P&L account, to petty expenses 1,000। हो गया, दैट्स इट, फिनिश्ड। चलो लाइन से बताओ एक एक अकाउंट। रेंट रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस, पे कितना हुआ है? 12,000। उसमें से प्रीपेड कितना है? बोल, तो फॉर द ईयर एक्सपेंस विल बी
11,600. By profit and loss account asterisk mark balancing figure. By profit and loss account asterisk mark balancing figure. कितना? 11,600. P&L account debit side to rain trades insurance, to rain trades taxes and insurance 11,600. बरोबर? सब लोग मेरे साथ चल रहे? अगला अकाउंट कौन सा है? फर्नीचर में क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है सिर्फ. बाय बैलेंस कैरिड डाउन एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. बाय बैलेंस कैरिड डाउन एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. बोलो बेटा. क्लोजिंग बैलेंस 7,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर 7,200. नेक्स्ट अकाउंट इज डेटर्स. क्या मिसिंग है? सेल्स आर मिसिंग. टू सेल्स. टू सेल्स. $1,08,000. Go to trading account. बाई सेल्स 1,08,000 बराबर. फिर क्रेडिटर्स. बोलो क्या करने का? क्रेडिटर्स क्या मिसिंग है? परचेसेस. बाय परचेसेस 51,000. ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेसेस 51,000 आया. और कौन से अकाउंट अब? रुको रुको, घाई मत करो आप लोग. अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. कैश बुक. कैश बुक में क्या मिसिंग है? ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है. ओपनिंग बैंक बैलेंस मिसिंग है. अब लिखना कुछ भी नहीं. लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलसी पे कैलकुलेट करके बताओ कितना है. हाँ. क्या बोल रहे? अरे मैं तुमको ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करके बताओ बोल रहा हूँ. हाँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ. ओवरड्राफ्ट आ रहा है. कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ क्या करने का है. डेबिट साइड फर्स्ट लाइन. डेबिट साइड फर्स्ट लाइन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेबिट साइड फर्स्ट लाइन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एस्ट्रिस मार्क. ब्रैकेट में लिखो 4,000. समझा क्या? निगेटिव बैलेंस ना. बोल दो ओवरड्राफ्ट. जेपा क्या? आया क्या 4,000 सबका? गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट. लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000. ओपनिंग बैलेंस शीट बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000.
नेक्स्ट। अभी क्या सिर्फ कैपिटल ही बचा है ना? चलो करो कंप्लीट। जीपी ढूंढो, एनपी ढूंढो। ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 91,000 ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है वो बैलेंसिंग फिगर। 91,000। आया क्या? देन जीपी 46 आ रहा है सबका। जीपी इज 46,500। व्हाट अबाउट एनपी? 9,100 added to the capital। क्लोजिंग कैपिटल 91,100 आया सबका। 91,100। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो कैपिटल, बैलेंस शीट शुड टैली। हो गया? क्या हो गया? मेरे को पूछ नहीं आया तो बोल।
यानी कुछ नहीं समझा है, टैली नहीं हो रहा तो मेरे को पूछ, मैं बताता हूँ। अरे बोलना। गाइस एक बार कंफर्म करो। फोर्थ, फोर्थ प्रॉब्लम इज पेंडिंग, 14th इज पेंडिंग, फोर्थ, फोर्थ, 14th एंड 16 होमवर्क दिया है बराबर। तो फोर्थ एंड 14th ही पेंडिंग है, जिसमें का फोर्थ तो ठीक है, बेसिक है, देखते हैं, कल टाइम परमिट किया तो सॉल्व करेंगे क्लास में, तो होमवर्क दे सकते हो। 14 जो है ना, जब मैं ये इवन मटेरियल डिज़ाइन कर रहा था फाउंडेशन के लिए, तो ये प्रॉब्लम रखना कि नहीं फाउंडेशन के मटेरियल में, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, डायलेमा था मेरे दिमाग में कि लेना या नहीं। बट फिर सोचा मैं कि यार आईसीआई का भरोसा नहीं, कभी पेपर टफ करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बट इसमें कुछ कैलकुलेशंस है जो तुमको अगर क्लास में नहीं समझाए तो ध्यान में नहीं आएंगे। क्लास में एक बार करा के दे दिया तो जम जाएगा। जैसे कल हमने वो किया था, देखो, क्रेडिटर्स डेटर्स का क्रेडिट पीरियड था, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड 1.5 महीना दिया था, मतलब डेटर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। तो ऐसे कुछ रेशियोज दिए है ये 14 सम में, और वो रेशियोज का यूज करके मिसिंग फिगर्स ढूंढने हैं। मस्त प्रॉब्लम है। इंटर में तो ये प्रॉब्लम 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, फिगर्स बदल के 3-4 बार। तो फिर मैंने वही कंक्लूजन पे आया, मतलब नको रिस्क लेने को। क्या है, फाउंडेशन में भी इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, सो इट इज़ बेटर टू हैव इट इन द मटेरियल। सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट अभी और टाइम भी बचा है, 12:05 हो गए, थोड़ा सा एक 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट पहले। तो वी विल कंप्लीट दिस टुमारो। टुमारो ये प्रॉब्लम कंप्लीट होकर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। होमवर्क करो सब लोग, कौन सा, 16 सब। डोंट वेस्ट टाइम, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो सॉल्व कर लो होमवर्क तुरंत, अभी क्या अभी। अभी लेक्चर आगे का कितने बजे बोला है प्रशांत सर का, है क्या अभी? अच्छा, ठीक है, मैं नीचे ऑफिस में बोलता हूँ बताने को। होमवर्क कंप्लीट करो बेटा, तब तक थैंक यू।